Jayan, dear students, we would like to give you a small update on how to prepare yourself for NDA and NA exams. Remember, all of you, that you are student, and remember that we as a teacher are also students. Time is changing very fast, and for the new time we have to evolve ourselves. हमें अपने आप को समय के अनुसार बदलना है, चुनौतियों का सामना करना है. Earlier, La Military Academy has been behind phenomenal results, not because we did the miracle, you did the miracles. आप लोग ने जब कोर्स पढ़ के आए थे तो आपने यहाँ पे रफ्तार सीखी, डाउट्स क्लियर किए, प्रैक्टिस की और उसके बाद सफलता हासिल की. Now, unfortunately, your course has been divided into parts. Thus, you forget the old past. And suddenly, for competition, when you want to study the whole course, जब आप पूरा कोर्स को पढ़ते हो तो you are not able to have your fundamental clear, and in 4 or 5 months or whatever amount of time we give you, it is not enough. You have to practice. I have told the students, would you like to spend 8, 9 hours with them? They said, no sir, we want to spend only 3 hours, maximum 4 hours. In 3 to 4 hours we cannot do miracles, because we can help you. We have helped many, and I always want you to understand this, that success is your seed. We are there to help you. Arjun didn't become Arjun because Arjun was listening only to Dronacharya. Arjun did practice whatever Dronacharya told him. We are two small examples in front of that lovely and big example. हम लोग बहुत छोटे उदाहरण हैं उन बड़े उदाहरण से. आज आप लोग सब लोग प्रोफेशनली शिकायत करते हैं कई लोगों के. मैं देखता हूं कि बहुत सारे पॉइंट्स में लिखा रहता है, बहुत सारी कोचिंग इसमें सब लोग के, और कभी कभी तो बड़ा अचंभा होता है कि बहुत सारी कोचिंग्स 0 रिजल्ट पे चल रही. और ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग की जो उम्मीद है टीचरों से, एकेडमियों से, वो ज़्यादा है और गलत है. Yes, academies should give you full support, they should educate you, they should support you, but also remember, it is your duty to practice, practice, practice. And if you take the directions and practice on the right front, you're going to do miracle, and that's exactly what we really want you to do. आप लोग को जीतना है, आपको सफल होना है, यह अनिवार्य है कि आप अभ्यास करें. मुझे मालूम है कि कई विद्यार्थी पढ़े, बहुत सारे, और कुछ चुनिंदे सिलेक्ट होते हैं. ऐसा क्यों नहीं कि जो सब लोग सोचते हैं कि हम सब प्रतिशत क्यों नहीं? क्योंकि आपकी एकाग्रता, आपकी मेहनत सर्वोपरि. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट. Academies can give you discipline, we do that. Academies can keep you teachers who can clear your doubts, we do that. We are also working day to day, every time. That is why we have sustained 37 years, and with such good amount of results. But now when we look at the new government policy, which has divided the course of 11th and 12th, and then we see the performance given by you people, we are surprised that the ratio which was 80 to 90% has come down to 40 to 50% only. और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे. तो प्लीज डू दैट. I want you to learn from a wonderful session by a student who has cleared his NDA in the very first attempt. How did he do that? I had been very specific कि academy क्या करेगी आपका मदद और आपको क्या करना है. And I am very proud that there are many of these cases who have made their success. Let one speak their success story. उम्मीद है आप उससे सीखेंगे, समझेंगे, और आगे सब लोग अपने आप से भी आप तैयार कर सकते. There have been many students who came to me from good schools who had good conceptual clarity. मैंने उन लोग का एडमिशन नहीं लिया था. Reason being, I gave them directions. I can give you directions of books also. You can study from your own. हाँ, SSB के टाइम पे हम आपको अलग से मदद करते हैं. Remember, La Military has had a good tradition of supporting people, creating awareness. We have done it many times. Many people who did not study also came to us and said, sir, you gave us good guidelines. Yes, we are supposed to do that.
We are not a commercialized person. We are not interested to be one. I have a good legacy of my family, my traditions, the rich army traditions which my father gave me, what I have learned from my every people, and I continue on the same. मैं इसीलिए आप सभी लोग से निवेदन करूंगा, दिल लगा के सत्र को सुनिए, समझिए और खुद से प्रिपरेशन कीजिए। आप में से कई लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, और कई लोग जो वैसे भी हैं, अपनी दिशा को सही कीजिए, अपनी मेहनत से मुंह मत मोड़िए, क्योंकि वही सफलता की कुंजी है। अगर आप हमसे दिशा लेना चाहें, वेलकम, नहीं लेते तो भी ये सत्र को ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोग घर में बैठ के अपने आप से सेल्फ प्रिपरेशन कर सके। एंड लेट्स सी यू बी सक्सेसफुल ऑफिसर। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि सर ने अभी बताया कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी को दिशा देनी है और एक अभ्यर्थी के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है। आप विश्व में किसी भी शिक्षक से शिक्षा ले लें, आप विश्व में कितने भी अच्छे संस्थान में जुड़ जाएं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होता है आपके स्वयं के प्रयास। यदि आप स्वयं के स्तर पर निरंतरता के साथ प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। कोई कितने भी विषम परिस्थितियों में हो, कितनी भी उसके सामने समस्याएं हों, पर यदि वह निरंतर हार्डवर्क करता है तो उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैंने लव लेटर एकेडमी को अब अपने गाइडेंस के रूप में इस्तेमाल किया। जो मेरे डाउट्स होते थे और जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में मुझे प्रॉब्लम होती थी वो मैं सर के माध्यम से क्लियर करता था, और निरंतर अपने सवालों को जो मैं सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी फेस करता था, सर के माध्यम से बहुत ही आसानी से क्लियर करता था। पर अगर मैं बात करूं कि मैंने कितनी देर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करी, तो दैनिक स्तर पे मैंने 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स और 2 से 3 घंटे जीएटी और इंग्लिश को दिए। और उसमें भी जो मेजर पोर्शन मेरा टाइम का होता था वो सिर्फ और सिर्फ सवालों को सॉल्व करने में होता था। जो सवाल मैं नहीं सॉल्व कर पाता था उनको मैं अलग से लिख लेता था, और शाम को जब हमारी क्लास होती थी तो उसमें सर से डाउट्स क्लियर करता था। मेरे कई फ्रेंड्स जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे वो सफल परीक्षा में इसलिए नहीं हो पाए कि उन्हें लगता था कि उन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली और बस हो गया। अपने स्तर पर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो मेहनत उन्हें करनी चाहिए थी वह उसे करने में असमर्थ थे। और आप भी यह बात मान लीजिए कि आपके समक्ष कितनी भी चुनौतियां हो सकता है आपके घर की आर्थिक स्थितियां ना सही हो, या किन्हीं अन्य कारणों से आप किसी एकेडमी या कोचिंग में तैयारी ना कर पा रहे हों, पर एक बात ध्यान रखिए कि आज के समय में आपके पास YouTube है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे आवश्यक बात यही है कि आप अंदर से कितना मोटिवेटेड हैं। क्या आप ऑफिसर बनना चाहते हैं? और यदि हाँ, तो कोई भी मुश्किल आपके समक्ष बड़ी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ निरंतरता के साथ हार्ड वर्क करना है। और आशा करता हूँ जो बातें मैंने अपनी तैयारी के दौरान ध्यान में लाई और जिनको अपनी तैयारी में लागू किया वो आपके साथ साझा करता हूँ, और यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट मी बिगिन दिस सेशन। जय हिंद फ्रेंड्स। Today I, Arunesh Dikshit, standing before you to express my views of preparation for NDA examination. At first, I shall introduce myself. I am Arunesh Dikshit and I have qualified the written examination of NDA and NA 2025 in my first attempt. So today we will discuss what are the ways and process we have to go through for preparing for the NDA written examination. दोस्तों, आज मैं अरुणेश दीक्षित आप सभी के समक्ष आया हूं अपनी तैयारी की जो बातें थी उनको साझा करने के लिए आप सभी के समक्ष। तो आइए जानते हैं कि मैंने एक अभ्यर्थी के तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखा जिससे मुझे मेरे पहले ही प्रयास में एनडीए की लिखित परीक्षा में सफलता मिली। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एनडीए की परीक्षा के मानक क्या हैं। हम सभी जो छात्र एनडीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह पता होगा कि एनडीए की परीक्षा 2 चरणों में होती है। सर्वप्रथम मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है जिसमें आपको एक मिनिमम पैरामीटर्स क्वालिफाई करना होता है, तो आप जीएटी का एग्जाम देते हैं। जीएटी के एग्जाम में कुछ पोर्शन इंग्लिश का होता है और मेजर पोर्शन में जो सेकंड पोर्शन होता है उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स आते हैं। तो एक अभ्यर्थी के तौर पर आपको इन सभी विषयों पर कैसे पकड़ बनानी है और किस तरह से अपनी तैयारी को एक दिशा देनी है ताकि आप कम मेहनत के साथ सफल हो पाएं। तो आइए जानते हैं मेरी तैयारी के बारे में। सबसे पहले जो एनडीए का एग्जाम होता है वो आपसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डिमांड करता है। कैसे? डायरेक्शनल,
क्योंकि आपको मैथ्स की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, मात्र 2 घंटे, और आपके सामने होते हैं 120 प्रश्न। और जो परीक्षा की जो एक तरीके से आपसे जो चाहती है वह यह नहीं है कि आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करें, पर यहाँ पर जो आपका डिमांड है इस परीक्षा की वो ये है कि आप कितने एक्यूरेट हैं और कितनी जल्दी किसी सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एनडीए में यदि आपने 60 प्रश्न सही कर लिए हैं तो आप एक अच्छा स्कोर माना जाता है मैथमेटिक्स के लिए, और यही स्कोर आपको अगले चरण के लिए बढ़त भी देता है, ताकि अगर आपका जीएटी अच्छा जाता है तो भी, और अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो भी आपके मैथ्स के मार्क्स आपको संभाल लेते हैं। कि जब आप तैयारी करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम आपको 60 प्रश्न सही करने ही करने हैं, तो आप एक मुख्य धारा में आ पाएंगे कंपटीशन की। यदि आपने 60 प्रश्न सॉल्व किए हैं और वह भी सही, तो जो आपकी कट ऑफ है या फिर जो लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनती है उससे बाहर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब तैयारी को प्रारूप कैसे देना है? जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। 11th और 12th की पूरी मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, पर उसमें भी सबसे पहले आपको यहाँ पर हार्ड वर्क तो करना है, पर उससे पहले यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क किन चरणों में? सबसे पहले जैसे मैंने जो अपनी तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी वो थी ला मिलिटियर एकेडमी, जो कि कानपुर में स्थापित है। यहाँ पर जो शिक्षक थे, जो सर थे, उन्होंने मुझे सर्वप्रथम यह बताया कि मुझे अपनी तैयारी को किस तरीके से दिशा देनी है। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऐसा भी नहीं है। आपको सर्वप्रथम जो हाई वेटेज चैप्टर है मैथमेटिक्स में उनको निकालना है, और उसमें भी आपको पहले यह सिलेक्ट करना है कि किन चैप्टर्स पर आपका कमांड अच्छा है। तो आपको उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करने हैं, और उसके बाद जो चैप्टर्स आपके वीक हैं उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले आप पकड़िए, और उसके बाद एटमोस्ट सवाल। एक बात आप समझ लीजिए कि एनडीए की परीक्षा जो आपसे डिमांड करती है वो सिर्फ यह डिमांड करती है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव प्रैक्टिस एंड द नंबर ऑफ एक्यूरेट आंसर्स यू हैव गिवन फॉर द सेम। जितना अच्छा आपका स्पीड होगी और उसके साथ जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, आप इस एग्जाम को एक्सेल पहले ही अटेम्प्ट में कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चैप्टर्स जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ, स्टैट्स हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, ये चैप्टर्स की जो वेटेज है वो बहुत हाई होती है। तो इन चैप्टर्स को अगर आप की जो कॉन्सेप्ट है वो वीक भी है, इन पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और अपनी डेप्थ को बनाना पड़ेगा। अगर जो कुछ 6 या 7 चैप्टर्स हैं आपने उनको कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि मोर देन 35% ऑफ द पेपर कैन बी सॉल्व्ड बाय 6 और 7 चैप्टर्स ओनली। तो इस दिशा के अनुरूप अगर आप कार्य करेंगे तो बहुत ही डायरेक्शनल एफर्ट्स के साथ आप परीक्षा को क्लियर कर ले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि परीक्षा में क्या मानक होते हैं। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स की परीक्षा होती है उसमें 120 सवाल होते हैं, और उस पेपर का जो वेटेज होता है वो 300 मार्क्स का होता है। उसके पश्चात जो जीएटी का पेपर होता है उसमें अंग्रेजी और जनरल एप्टीट्यूड दोनों ही आता है। अंग्रेजी 200 नंबर की होती है, और जीएटी के जो अन्य प्रश्न होते हैं जीएस के वो 400 नंबर के होते हैं। मैथमेटिक्स में हर सवाल 2.5 नंबर का होता है, और जीएटी में हर सवाल 4 नंबर का होता है। पर यहां पर हमको एक बात का ध्यान और रखना है कि यदि आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी लेनी पड़ेगी। तो नेगेटिव मार्किंग का जो रेशियो है उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सही उत्तर होने पर 2.5 नंबर तो मिलेंगे, पर यदि आपका उत्तर गलत हुआ तो आपको मैथमेटिक्स में 0.8 नंबर्स का नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। और अगर हम बात करें जीएटी की तो 4 नंबर सही उत्तर के लिए, और यदि आपने गलत उत्तर दिया है तो उसके लिए 1.6 मार्क्स का नेगेटिव आपको यहां पर खाना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप उत्तर के प्रति एकदम निश्चित हैं कि हाँ यही उत्तर है, तभी प्रश्न को अटेम्प्ट करें, अन्यथा उसे छोड़ दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स को आपको कैसे तैयार करना है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अपनी जो स्कूल बुक है, जो सिलेबस बुक है, आप चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या स्टेट बोर्ड के हो, आपको सबसे पहले अपने विद्यालय की जो किताब है उसको खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स से आप टॉपिक्स पे कमांड बना पाएंगे। उसके बाद जो प्रश्न है उनको सॉल्व करिए, और लास्ट में हर किताब में टेस्ट होते हैं, चैप्टर टेस्ट, उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी कमांड बना ली है, उसके पश्चात जो एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे जाइए। और आजकल हम जानते हैं कि ऑनलाइन साइट्स पे सारे ही पेपर्स अवेलेबल हैं। इन्हीं माध्यमों का इस्तेमाल करके आप
बहुत ही आसानी से कई प्रश्नों के उत्तर एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी बुक पर डायरेक्ट जंप नहीं करना है। सर्वप्रथम अपने विद्यालय की जो किताब है, जो आपके करिकुलम की जो बुक है बेसिक, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल्स की बुक को अप्रोच करना है। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की है तो आप हायर कॉम्पिटिशन्स की बुक को भी लगा सकते हैं, ताकि जो आपकी एफिशिएंसी है, जो हम 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, वो 70 और 80 क्वेश्चन तक भी चला जाए। लेकिन आपको यह तैयारी तब करनी है जब आप 60 क्वेश्चंस मिनिमम एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना है, ताकि वो जो एक्यूरेसी है वो 80 क्वेश्चंस तक चली जाए। और अगर आप 80 सवाल एनडीए के मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप यह समझिए कि आपके पास मैथमेटिक्स के लिए अच्छी कमांड है। अब हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें फोकस करने हैं। तो जब मैं अपनी कोचिंग में तैयारी कर रहा था, तो जो हमारे मैथमेटिक्स वाले सर थे, उन्होंने जो मैंने आपको टॉपिक्स गिनाए, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, कैलकुलस, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं पेपर में और बहुत कोर में सवाल नहीं पूछे जाते। मैं कहूं कि आपको बहुत ज्यादा इसके पीछे नॉलेज होनी चाहिए, नहीं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है, तो आप बहुत स्पीड में और बहुत एक्यूरेसी के साथ सवालों को हल कर पाएंगे। उसके बाद जो मुख्य एक बात है जो डिमांड करता है यह पेपर, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी। इस बात को निरंतर ध्यान रखिए कि हर चैप्टर को सॉल्व करने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है, उनको आप यदि ऑनलाइन माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से, और यदि किसी संस्थान से आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहां के शिक्षकों से जरूर डिस्कस करें। अगर आपने कोई भी टॉपिक यह सोचकर छोड़ दिया कि अरे कोई बात नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक बुक्स मैंने जो तैयारी के लिए इस्तेमाल की थी, उनमें से मुख्य बुक्स हैं। सबसे पहले मैंने कहा एनसीईआरटी, उसके बाद पाथफाइंडर जो इंडिया की होती है। इतना अगर आपने कर लिया है, उसके बाद आपको आरएस अग्रवाल सॉल्व करनी है। और आरएस अग्रवाल में भी अगर आपके जो टीचर हैं उनसे जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कराइए और एग्जाम्पल्स को मार्क करा लीजिए कि सर कौन कौन से एग्जाम्पल्स एनडीए के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि इंग्लिश प्रिपरेशन में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। देखिए, आपको सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट समझना होगा कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो बेसिकली इंग्लिश के पेपर में हम देखते हैं ग्रामर का मेजर पोर्शन होता है, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स का मेजर पोर्शन होता है, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, और हमारे पास पूरा पैराग्राफ होता है जिसपे के बेस पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो एक वैरायटी और डाइवर्सिफाइड पेपर हर बार यूपीएससी सेट करता है, जो हमने पैटर्न्स में देखा है। और आप इस बात को पूर्णतः दिमाग में रख लें कि पेपर बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कोई भी शिक्षक, कोई भी अभ्यर्थी यह नहीं कह सकता कि इस बार के पेपर में इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो हर एक प्रारूप, हर एक बात और हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी तैयारी के लिए जो आपको बेसिक चीजें करनी है वो ये है कि आपको वर्ड मीनिंग्स पे बहुत फोकस करना है। डेली आपको टारगेट बना लिए, जिस तरीके की आपकी सस्टेनेंस पावर है दिमाग की, जैसे 50 वर्ड्स पर डे या 100 वर्ड्स पर डे आपको नए याद करने हैं और उनका सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है। और इडियम्स फ्रेजेस, जो मुहावरे होते हैं, उनका इस्तेमाल और प्रयोग आपको याद होना चाहिए। उसके पश्चात कई जो किताबें हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। पर फिर भी मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपने कोई भी कॉन्सेप्ट कवर किया, कोई भी किताब पढ़ी, उसके बाद सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यूज ओनली। पीवाईक्यूज करने के बाद ही आप किसी अन्य किताब की तरफ आगे बढ़े, चाहे वह गणित हो, अंग्रेजी हो या जीएस हो। सभी में एक अभ्यर्थी के तौर पर जो मैं सलाह दूंगा वो यही दूंगा कि सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज को ही करना है, उसके बाद आप अन्य किसी बुक का अनुसरण कर सकते हैं। तो इसमें जो मेजर चीजें जो आपको बातें ध्यान देनी है वो है ग्रामर प्रोफिशिएंसी। हम देखते हैं कि आजकल अंग्रेजी तो हम काफी अच्छे से बोल लेते हैं, पर जो ग्रामर पे कमांड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और हम देखते हैं कि ऑनलाइन माध्यम में भी बहुत सारी जो शिक्षक हैं उनके थ्रू जाकर के आप अपनी ग्रामर पे कमांड कर सकते हैं। और बार बार वही चीजें हैं कि यू हैव टू प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। लगातार प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अपने आप को एडवांस और मॉडिफाई कर पाएंगे। उसके बाद जो इफेक्टिव प्रैक्टिस है, क्या
अगर आप एक अच्छा न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, इनको पढ़ेंगे तो इससे आपके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। एक तो आपकी अंग्रेजी पे कमांड बढ़ेगी और उसके बाद यू विल गेट अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी फैक्ट दैट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस माध्यम से आपकी जीएस की भी तैयारी हो जाएगी। तो एक अभ्यर्थी के तौर पर मैं यह सुझाव अवश्य दूंगा कि आप कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर आजकल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िए। और उसके बाद जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान यूज की थी वो थी रेन एंड मार्टिन्स इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये दोनों किताब आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए सफिशिएंट हैं, पर उससे पहले जो आपके बेसिक्स हैं, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको कवर करने के बाद, इनके पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ही आपको इन किताबों की तरफ जाना है। और जो मैंने बताया कि आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जीएस को कैसे आपको कमांड बनाना है। तो जीएस में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं आपके पास, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सिविक्स है, जियोग्राफी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और करंट अफेयर्स हैं। तो इतने डाइवर्सिफाइड पेपर को आप टैकल कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट की वेटेज को पकड़ना पड़ेगा। किसी भी परीक्षा की तैयारी से करने से पहले आपको उस परीक्षा के जो अनुरूप है उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का पेपर लगातार आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जीएस में 100 सवाल होते हैं जो कि 400 नंबर के होते हैं, 4 नंबर का एक प्रश्न। उसमें से मेजर पोर्शन साइंस का होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल होते हैं। तो यदि आप साइंस बैकग्राउंड से चले आ रहे हैं तो यह आपको सहायता करेगा। और क्लास 10 तक हम देखते हैं कि सभी बच्चे जनरल साइंसेस पढ़ते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने साइंस पढ़ी है क्लास 10 तक, उसी पे बेस सवाल एनडीए के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको उन पे कमांड करना जरूरी है। और अगर आपने अच्छे से कमांड किया है तो आप 50 में से 41 या 42 सवाल बहुत आराम से कर ले जाएंगे। और वो बिल्कुल ऐसे अप्रोचेबल सवाल होते हैं कि आपने प्रश्न पढ़ा और सीधा उत्तर दे दिया। पर यह तभी हो पाएगा जब आपने तैयारी के दौरान खूब मेहनत से और खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया और पढ़ा है। और इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे ही कमांड करनी है। जो एनसीईआरटी की क्लास 6 से 10 तक की बुक्स हैं उनको आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स और हिस्ट्री पे। इसके लिए आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पे कमांड रखनी पड़ेगी। और अरिहंत की जो पाथ फाइंडर किताब है वह भी सफिशिएंट है आपको दिशा देने के लिए। तो और करंट अफेयर्स के लिए हम देखते हैं कि आजकल यूट्यूब पे काफी चैनल्स हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे पाठक हैं तो आपको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप इतनी सारी तैयारी कर लेंगे तब आती है जो सेपरेशन और प्रिपरेशन के बीच का जो एक पर्टिकुलर, एक बहुत बाल के बराबर की जो थिकनेस के से जो निकलता है वो होता है एसएसबी इंटरव्यू। जो सारी रिफाइनिंग हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी। हम देखते हैं कि मोर देन 8000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई द रिटन एग्जाम बट देयर आर ओनली 400 वैकेंसीज फॉर द एनडीए। तो आप समझिए कि सिलेक्शन रेशियो कितना कम है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सेम। पर आपको यहां तक एसएसबी इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए रिटन एग्जाम को बहुत अच्छे से देना होगा, ताकि अगर एसएसबी इंटरव्यू में कुछ ऊंच नीच होती है तो रिटन एग्जाम के मार्क्स के थ्रू आप क्वालिफाई कर ले जाएं, कट ऑफ में आप मेरिट आउट ना हो। और यदि आप लिखित परीक्षा बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं तो विभिन्न माध्यमों के द्वारा आप एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैं अल्लाह मिलिट्री एकेडमी में कानपुर में तैयारी कर रहा हूं और यहाँ के शिक्षकों और के मार्गदर्शन में निरंतर ही अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर रहा हूं। यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो हमारे सर हैं, अरुण सर, उन्होंने जो मार्गदर्शन और जो पॉइंट्स मुझे बताए हैं अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने के लिए, उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया है। और यहाँ पर हम डेली रिकॉर्डिंग्स करते हैं, डेली हम पब्लिक इवेंट्स को मैनेज करते हैं और इंटरेक्शन भी करते हैं, जिस तरीके से हमारी जो वर्बल जो स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक कि मैंने जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास थे एज एन एस्पायरेंट, आई हैव डिस्कस इट ऑल। और आशा है कि आप सबको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे एक अभ्यर्थी के तौर पर। और मैं यही चाहूंगा कि आपने यदि एक लक्ष्य बनाया है एनडीए ज्वाइन करने का, तो उसके लिए आपको अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य करना पड़ेगा। और है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खमठेल ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सके। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू बी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड बी फेथफुल टुवर्ड्स यू। अगर आप स्वयं को जस्टिफाई कर रहे हैं, स्वयं के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप सबने बहुत संयम के साथ सुना। धन्यवाद।
तो अब हम बात करेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें क्या मेजर्स आपको लेने हैं। सबसे पहले जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमने जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करते वक्त आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जहां पर आपको मास मैनेजमेंट करना है। तो इसके लिए जो बेसिक जो डेली एक्सरसाइज आपको करनी है जिससे आपका एक स्टेमिना बना रहे, क्योंकि वहां पर आपको जीटीओ भी करने पड़ेंगे और कई टास्क मिलते हैं जिसमें आपका स्टेमिना चेक होता है। और फोकस ऑन एजिलिटी। एजिलिटी का अर्थ यह है कि अपने आप को आप कैसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं और कैसे जो स्नेक रेस होती है और अन्य जो टास्क होते हैं उसमें किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। फिजिकल मेंटेनेंस बहुत मास लेवल पे नहीं चाहिए, पर आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक बेसिक फौजी जो अधिकारी के पास एक फिजिक होनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपको जरूर मेंटेन करनी है, चाहे वो वेट हो, हाइट हो या अन्य जो प्रारूप होते हैं जैसे आईसाइट हो गई। बेसिक चीजें आपको हाथ में लेके ही चलनी है। उसके बाद तो ये बेसिक जो बातें थी ये मैंने आपको एक अभ्यर्थी के तौर पर बताई, जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान सीखी और जो प्रिवेंशंस मैंने या जो चीजें अपने अंदर बदलाव के द्वारा करी। तो अब ये मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं। मेरा नाम अरुणेश दीक्षित है और ये मेरा यूपीएससी रोल नंबर है एंड आई हैव क्वालिफाइड रिटन एग्जामिनेशन फॉर NDA 1 2025, जो कि मैंने अपनी पूरी तैयारी ला मिलिटियर एकेडमी कानपुर से ही करी है।